प्रीलिम्स जो है 5 बार क्लियर किया है. ओके, दिस इज आवर प्रोफाइल. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन. With reference to the following, with reference to the challenges in implementing a uniform national judicial policy, ठीक है, CGI ने इसको लेके बोला है. So first option is different high courts follow varied procedural rules and local languages making nationwide uniformity difficult. कह रहे कि जो अलग अलग हाई कोर्ट है उनका थोड़ा प्रोसेस अलग है, लैंग्वेज अलग है, तो डिफिकल्टी आएगी. Second option is judicial infra staffing and technological readiness vary significantly across states. Then third option is a national judicial policy may risk infringing upon the constitutional independence of high courts. Okay, so take 5 seconds and mark your answer. So the right answer for this is all the three options are correct. So all three. Okay, आप जब पढ़ेंगे ऑप्शन को आइडिया रखेंगे नेशनल जुडिशियल पॉलिसी की एक सिंगल पॉलिसी बनाई जाए तो यू विल गेट इट कि ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट. होपफुली यू हैव गॉट इट राइट. Moving to question number 2, consider the following statements regarding the Entrepreneur in Residence EIR program. First option, it supports young innovators in converting research ideas in biotechnology into commercially viable products. Second, it is implemented under India's Department of Biotechnology. Third, it provides long-term funding for startups that have already entered full-scale commercial manufacturing. तो ये जो क्वेश्चन हमने पीआईबी से लिया है, पॉज करेंगे आप लोग फॉर 5 सेकेंड एंड मार्क करेंगे. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A1 and 2Y, बिकॉज थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत है. इसमें ये दे रखा है कि दैट हैव ऑलरेडी इंटर्ड फुल स्केल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग, ये गलत है. ये जो आपका स्कीम है EIR, ये प्री स्टार्टअप के लिए, प्री स्टार्टअप फेज के लिए, जो अभी तक फुल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं होंगे. A1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. Moving to the third question, which of the following are correct features of REPM, Rare Earth Permanent Magnets Manufacturing Schemes? ओके, काफी इंपॉर्टेंट है ये. ईवी वगैरह को लेकर डिस्कशन चल रहा है और हर कंट्री स्पेशली इंडिया जो है फोकस बढ़ा रही है इसके ऊपर. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज इट इंक्लूड्स अ 7 year ओवरऑल ड्यूरेशन विद अ 2 year जेस्टेशन पीरियड एंड 5 year इंसेंटिव पीरियड. कह रहे 7 साल का टाइम है इस REPM स्कीम को लेके, मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लेके. 2 साल जेस्टेशन पीरियड, 5 साल इंसेंटिव पीरियड. Then second option is India currently contributes over 10% to global REPM production. आप नंबर पे फोकस करो. कह रहा REPM जो ग्लोबल प्रोडक्शन है उसका 10% इंडिया कंट्रीब्यूट कर रहा है, which the scheme aims to increase. Then the third option is China controls nearly around 90% of global REPM supply, which the scheme attempts to counter through domestic capability. Okay, so अब आप सेकंड थर्ड ऑप्शन देखो. अगर चाइना 90% का राउंड कर रहा है, इंडिया 10% का राउंड कर रहा है, तो दो ही कंट्री 100% कर रही है. मुश्किल है, ठीक है. बाकी आपको पता होगा चाइना का चांसेस ज्यादा है ऐसा करने के. सो टेक 5 seconds and mark the right answer. So the right answer for this is that 1 and 3 are correct. Okay, so 1 and 3 is correct. Second option is incorrect. इंडिया का जो नंबर है अभी ये अराउंड 1% है, काफी छोटा नंबर है. सो बी केयरफुल अबाउट सच नंबर्स. ओके. Coming to question number 4, with reference to the Commonwealth of Nations, consider the following statement. First, India continued as a member of the Commonwealth after becoming a republic through the London Declaration of 1949. Second, membership of the Commonwealth requires allegiance to the British Crown. Third, countries without any colonial link to the British Empire are ineligible to join the Commonwealth. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर. तो ठीक है, इस पे फोकस करिए आप. जो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है इस पे अच्छे से फोकस करिए. पहली बात क्या है कि अभी जो हम एरा में रह रहे हैं वो पोस्ट कॉलोनियल ऑर्डर है, पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड ऑर्डर है. यहाँ पे इस तरीके से बंदिश या फिर किसी तरह का कंस्ट्रेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉलोनियलिज्म नहीं लगाया जा सकता है किसी भी कंट्री के ऊपर. और क्यों लगाएंगे? वो तो लोग चाहेंगे कि मल्टीलैटरल फोरम में और कंट्रीज बढ़े. तो फोर्थ जो थर्ड ऑप्शन है कि बिना कॉलोनियल लिंक के आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, दैट इज रॉन्ग. ठीक है. 2 कंट्रीज मोजाम्बिक एंड रवांडा ने ज्वाइन किया है. सेकंड, मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ रिक्वायर एलिजियंस टू द ब्रिटिश क्राउन. ये वही बात है कि हम कॉलोनियल वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं. कोई भी जो सॉवरेन कंट्री है, प्राउड कंट्री है, व्हाई दैट कंट्री विल टेक एलिजियंस टू द ब्रिटिश क्राउन, राइट? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज A1 ओनली. Now moving to the fifth question. Consider the following statements about Sirpur archaeological site.
फर्स्ट ऑप्शन इज सिरपुर सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ दक्षिण कोशाला अंडर द बोथ पांडुवंशी एंड सोमवंशी डायनेस्टीज, कि सोमवंशी और पांडुवंशी दोनों ही जो डायनेस्टीज थे उसके लिए कैपिटल का काम किया। देन सेकंड ऑप्शन इज, उनकी राजधानी थी बेसिकली। सेकंड ऑप्शन इज लक्ष्मण टेम्पल एट सिरपुर इज वन ऑफ द इंडियाज अर्लीस्ट stone temples showcasing Panchayatan architecture. And third option is excavations have revealed the presence of Hindu, Buddhist, and Jain monuments within the same urban complex. Now important is आर्ट एंड कल्चर वगैरह में क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर से ही लिंक्ड होते हैं, सो इस तरह के टॉपिक्स को आपको कवर करना चाहिए अच्छे से। सो टेक 5 seconds, mark the right answer. So the right answer for this is answer is B. Second option is incorrect. It is one of the earliest brick temples. जो ब्रिक से बने हुए टेम्पल है, वन ऑफ द अर्लीस्ट है, नॉट स्टोन टेम्पल। बाकी दोनों ही ऑप्शन जो है इसके राइट है। ओके, सो रीड दिस स्टेटमेंट अगेन, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। Coming to question number 6, consider the following characteristics associated with India's new gene-edited rice lines tested under AICRPR, All India Coordinated Research Project Trials. तो पहला ऑप्शन आपके पास है, they were evaluated using blind coded multi-location national trials. Second option, they include varieties specifically bred for tolerance to saline and alkaline soils. Third, they are India's first gene-edited rice varieties to undergo national evaluation. तो पॉज करेंगे और मार्क करेंगे आप लोग, ठीक है। ICAR जो है हमेशा से ही फेवरेट टॉपिक्स में से एक रहा है यूपीएससी के, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, राइट। ब्लाइंड कोडेड मल्टी लोकेशन और वेराइटीज फॉर टॉलरेंस ऑफ सैलिन एंड अल्कलाइन सॉइल एंड जीन एडिटेड, तो D1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। Now moving to the seventh question. Consider the following statements about IAU's naming of Martian surface features. So आप लोग क्या करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि IAU का फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज लार्ज क्रेटर्स ऑन मार्स आर नेम्ड आफ्टर डिसीज्ड साइंटिस्ट, जिनकी डेथ हो चुकी है, who have made significant contributions to their field, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है, काफी फेमस, काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया हुआ उन्होंने। सेकंड ऑप्शन इज स्मॉल क्रेटर्स ऑन मार्स आर नेम्ड आफ्टर टाउन्स और विलेजेस ऑन अर्थ विद कल्चरल और हिस्टोरिकल रेलेवेंस, कि मान लो कोई फेमस गांव वगैरह है तो उनके नाम पे। थर्ड ऑप्शन इज द IAU नेमिंग रूल्स अलाउ लिविंग साइंटिस्ट टू प्रपोज नेम्स फॉर प्लेनेटरी फीचर्स। अगेन आप फोकस करेंगे कि पहला और तीसरा ऑप्शन अपने आप में कंफ्लिक्ट में है, और यूजुअली आप देखेंगे भी कि लिविंग लोगों के ऊपर कम ही चीजों के नाम रखे जाते हैं, ठीक है। तो मार्क योर राइट आंसर व्हिच यू फील राइट। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन 1 and 2, बी। थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट। एक तो पहली चीज आप खुद से प्रपोज नहीं करोगे, दूसरी चीज डिसीज होने चाहिए, ठीक है, मतलब उनकी डेथ हो चुकी होनी चाहिए। Now, coming to question number 8, the Aravalli Hills extend across which of the following states? So, there are 4 states. One is Haryana, second Rajasthan, third Gujarat, and fourth Himachal Pradesh. तो आप लोग क्या करेंगे, पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आंसर, ठीक है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के जो रेंजेस हैं, अरावली हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गया, ईस्टर्न घाट्स हो गया, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से स्टेट को कवर करता है, ये यूपीएससी पूछता रहता है। तो मैप पे लोकेट करेंगे और आप लोग रिवाइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो आंसर है दैट इज A1 2 and 3, हिमाचल प्रदेश को क्रॉस नहीं करता है। और दो और स्टेट्स जो आपके हरियाणा, राजस्थान, गुजरात है, फिर यूपी और दिल्ली का जो एनसीटी है वो भी आएगा इसमें। Move to the ninth question. The highest peak of the Aravalli Range is one of the easiest questions, ठीक है। one of the highest peak of Aravalli Range is, so mark your answer. So the right answer for this is Guru Shikhar. Option is A, Guru Shikhar. आप लोग इसको बताइए ये कौन से स्टेट में है, in which state it is located. Coming to question number 10, consider the following statement regarding the G20 Johannesburg 2025 summit. First, the 2025 G20 leaders declaration included a global goal called the Nelson Mandela Bay Target. Second, the summit launched a cost of capital commission to address unfair risk premia for global south countries. Third, the declaration was adopted unanimously by all G20 members including the US. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग, ठीक है।
अभी आपको ये बात पता होनी चाहिए दैट यूएस जो है उसके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बॉयकॉट किया जो G20 समिट है, एंड उन्होंने क्रिटिसाइज किया है साउथ अफ्रीका को। तो जब यूएस क्रिटिसाइज कर रहा है तो हाउ इट विल बी यूनानिमसली पास्ड? तो दैट इज इनकरेक्ट। तो ओनली टू ए 1 and 2, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Moving to the 11th question. Which of the following were highlighted as outcomes in the G20 Johannesburg 2025 declaration? Adoption of a G20 critical minerals framework. कह रहा है कौन कौन से आउटकम से G20 जो आपका जोहान्सबर्ग में डिक्लेरेशन आया उसमें। तो G20 क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क का अडॉप्शन। सेकंड ऑप्शन इज लॉन्च ऑफ मिशन 300 टू एक्सपैंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस अफ्रीका कि इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस बढ़ाना है अफ्रीका में। ओके आपको बताओ काफी बैकवर्ड रीजन है तो इलेक्ट्रिसिटी की एक्सेसिबिलिटी का इशू है। देन द थर्ड ऑप्शन इज फॉर्मल इंडोर्समेंट ऑफ यूएनएससी रिफॉर्म, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रिफॉर्म टू इंक्लूड अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड एशिया पैसिफिक कि इन रीजन से भी जो है रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए। ओके सो टेक 5 seconds and mark your answer in your OMR sheet. So the right answer for 11th question is all three options are correct. Hopefully you have got it right. G20 important theme है आपके 2026 के प्रीलिम्स के लिए, और कोई पीसीएस अगर आप दे रहे हो तो उसके लिए भी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैम्बू स्कैफोल्डिंग। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है हांगकांग में। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, बैम्बू स्कैफोल्डिंग इज वाइडली यूज्ड इन हांगकांग बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील स्कैफोल्डिंग। सेकेंड, fire risk increases in bamboo scaffolding due to its high combustibility when dry. Third, it is tied together primarily using nylon or plastic straps instead of metal fasteners. तो पॉज करेंगे, मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है। अब आप लोग देखोगे जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है उसमें क्या बोल रखा है कि बैम्बू स्कैफोल्डिंग विल बी स्ट्रॉन्गर देन स्टील स्कैफोल्डिंग। क्या ये पॉसिबल है? किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकता ये। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर आप गलत करोगे तो यू विल फाइंड कि दो ऑप्शन आप ऐसे एलिमिनेट कर दोगे, बी एंड डी। एंड सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट एक्चुअली। फायर रिस्क इंक्रीज हो जाता है बैम्बू स्कैफोल्डिंग में बिकॉज ऑफ इट्स ड्राई नेचर। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा A, 2 and 3। ये ऐसे ही पता होगा आपको कि जब इस तरह के ट्रीज होते हैं बैम्बू वगैरह जो होते हैं, क्योंकि काफी ड्राई होने के बाद क्या होता है इनफ्लेमेबल बन जाते हैं, तभी जंगल वगैरह में जो है आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर वगैरह चीजें होती हैं। तो ये बेसिक कॉमन सेंस से भी आप मार्क कर सकते थे। ओके सो 2 and 3 इज द राइट आंसर। Then 13th question with reference to the text ramps. Okay, textile ramps. So ramp is what? Rejuvenation, acceleration and mitigation of pandemic program scheme. तो उसका जो impact हुआ टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे उसको लेके कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम fully funded by union government. Second option is it supports the India size project under its data and diagnostic component कि ये component है इसके अंदर। Then the third option is it will be implemented by textile producing state with 50% funding from the center. Now exam pressure में काफी बच्चे गलत कर देते हैं इसे, but again आप focus कीजिए why we are curating such kind of options, क्योंकि इन दो ऑप्शंस के थ्रू आप कर सकते हो। यूपीएससी में इसी तरह से काम करता है एलिमिनेशन टेक्निक कि दोनों में से एक ही ऑप्शन हो सकता है। ये सेंटर सेक्टर स्कीम होगा तो फिर स्टेट शेयर क्यों करेगा? ओके तो हियर दिस इज अ सेंटर सेक्टर स्कीम। ओके यहाँ पे शेयर देने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वन इज करेक्ट, सो दिस इज इनकरेक्ट एंड 1 and 2। अब इसमें आप डाउट में 50-50 हो तो यू कैन टेक चांस। अदरवाइज जैसे हमने कहा थोड़ा आपको नॉलेज भी होना चाहिए, तो इसलिए इस तरह की चीजें जो न्यूज कवर कर रहे हैं उनके बाद बेसिक नॉलेज होगा, देन यू अप्लाई द एलिमिनेशन टेक्निक एंड इट वर्क्स। Coming to question number 14, consider the following statements regarding the National Green Tribunal. First, it can hear appeals related to Wildlife Protection Act 1972 and Forest Right Act 2006. Second, it is bound by the Civil Procedure Code 1908 while adjudicating environmental disputes. Third, the chairperson of the NGT is appointed by the central government in consultation with the Chief Justice of India. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग। ठीक है। तो जो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है दोनों ही गलत है। वाई? बिकॉज एनजीटी जो है वो नेचुरल जस्टिस पे काम करता है, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट या फिर सिविल प्रोसीजर कोड पे काम नहीं करता है। एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, अपॉइंटमेंट रिक्वायर सीजीआई कंसल्टेशन। ठीक है। तो B3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आइडिया ऑफ नेचुरल जस्टिस सीपीसी से बाउंडेड नहीं है, किसी भी इतने में काम करना है ऐसे, और इन एक्ट को कवर नहीं करता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
और फॉरेस्ट एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये सब इसके अंदर कवर नहीं है। और नेचुरल जस्टिस सीपीसी जो नॉर्मल कोर्ट फॉलो करते हैं उनको, उनसे बाउंड नहीं है। एंड द 15th क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर सुपरबग। लास्ट के 7-8 सालों से न्यूज में है, काफी बार आपने सुना होगा, काफी डॉक्टर्स ने भी बोला होगा कि एंटीबायोटिक का डोज होता है 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, पूरे डोज आप पूरे कीजिए और छोड़ना नहीं है बीच में। तो इंडिया में ये प्रॉब्लम है एक्चुअली एटीट्यूड की वजह से भी। सो ये कह रहा है कि कंट्रीब्यूट टू द राइज ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एएमआर सुपरबग्स। क्यों हो रहा है ऐसा? तो पहला ऑप्शन, ओवर यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ओवर यूज कर रहे हैं, काउंटर से आगे खरीद लिया और यूज कर लिया। जीन ट्रांसफर बिटवीन माइक्रोब्स इन साइड हॉस्पिटल्स, की जो माइक्रोब्स है वहां पे हॉस्पिटल के अंदर, उनके बीच में जीन ट्रांसफर हो रहा है। एंड थर्ड ऑप्शन इज कि जैसे ना उनका म्यूटेशन वगैरह हो जाता है। देन द थर्ड ऑप्शन इज इनकम्प्लीट एंटीबायोटिक डोजेज बाय पेशेंट, जैसे हमने कहा कि अगर 7 दिन का डोज है, 2 दिन पे ही छोड़ दिया, 3 दिन पे ही छोड़ दिया, या कभी खाया कभी छोड़ दिया, इस तरह से। सो थिंक अबाउट इट एंड देन मार्क द राइट आंसर। आई गेस वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन while explaining the options. So तीनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं, तीनों ही फैक्टर्स हैं, इसके रीजन है जो एएमआर को प्रमोट कर रहे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट थीम है आपके लिए। Coming to question number 16, consider the following statements about India's national account statistics. First, India currently uses the producer price index as the primary deflator for estimating real GDP. Second, India compares GDP following the UN system of national accounts methodology. Third, India's quarterly GDP estimates currently lack robust seasonal adjustment affecting trend interpretation. तो इंडिया का जो लेटेस्ट जीडीपी डेटा आया है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा जीडीपी रेट है, नॉमिनल जीडीपी रेट क्या है, रियल जीडीपी रेट क्या है, राइट, बिकॉज दैट इज इन न्यूज। एंड दूसरा कि बेस ईयर क्या है, बिकॉज यूएन ने हमें क्रिटिसाइज किया है विद रिस्पेक्ट टू बेस ईयर, कि हमने बेस ईयर अपडेट नहीं किया। तो क्या है वो बेस रेट, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, बेस ईयर। तो यहाँ पे फोकस करोगे आप फर्स्ट ऑप्शन पे। ठीक है, इंडिया करेंटली यूजेस द प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये गलत है। हम जो है डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स पे फोकस करते हैं, राइट, नॉट पीपीआई। तो द करेक्ट आंसर विल बी बी, 2 and 3। देन द 17th क्वेश्चन, ये काफी न्यूज में था, अभी देखा होगा आपने, वायरल हुआ था ट्वीट वगैरह में भी, इंस्टा वगैरह पे भी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओरामाइन ओ। ओरामाइन ओ इज लीगली परमिटेड इन इंडिया फॉर फूड कलरिंग अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन। इट इज यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी फॉर staining acid fast bacteria such as mycobacterium tuberculosis. Then the third option is कह रहा है oramine O belongs to the diaryl methane group of synthetic dyes। ठीक है, कि केमिकल कंपाउंड है ये और सिंथेटिक डाई के कैटेगरी से बिलोंग करता है ये। ओके, सो आप तीनों ऑप्शन को पढ़िए, टेक 5 seconds एंड मार्क योर राइट आंसर। सो द थिंग इज इन दिस केस दीज टू, कि ये केमिकल है और डाई कैटेगरी का ही है। माइक्रोबायोलॉजी वगैरह में यूज किया जाता है इसको, स्ट्रेनिंग एसिड फास्ट बैक्टीरिया जैसे माइक्रोबैक्टीरियम को लेके। जो पहला ये है कि ये इलीगल है, ठीक है, स्टिल फाउंड किया गया, देखा गया कि चने वगैरह में है ये, लेकिन ये इलीगल है, यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। 2 and 3 इज द राइट आंसर। Coming to question number 18, with reference to tropical cyclones in the Bay of Bengal, consider the following statements. First, cyclone Ditwa formed over the southwest Bay of Bengal, while cyclone Senyar originated near the state of Malacca. Second, October-November is peak cyclone season in the Bay of Bengal due to very warm sea surface temperature and low vertical wind shear. Third, cyclones in the Arabian Sea are always more frequent than those in the Bay of Bengal during the retreating monsoon phase. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर। ठीक है, ये जो रिट्रीटिंग मानसून फेज है, ये कौन से टाइप का मानसून होता है, साउथ वेस्ट मानसून होता है या नॉर्थ ईस्ट मानसून फेज होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेट ऑफ मलक्का है, ये मैप पे देखिए कहाँ है, किस स्टेट के पास है ये, यूपीएससी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अब जो फर्स्ट ऑप्शन है, राइट, उस पर फोकस कर लिया आपने, तो दैट इज करेक्ट। सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड ऑप्शन पे फोकस करिए कि साइक्लोन्स इन अरेबियन सी आर ऑलवेज मोर फ्रिक्वेंट। देखिए ये गलत बात है, फर्स्ट और सेकंड में आपको बोला जा रहा है कि बे ऑफ बंगाल में आ रहे हैं साइक्लोन और पीक साइक्लोन सीजन में अक्टूबर नवंबर में होता है, तो थर्ड कैसे सही हो सकता है, राइट।
तो अरेबियन सी से ज्यादा जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो बे ऑफ बंगाल रीजन में होता है, तो बी ओनली टू विल बी द करेक्ट आंसर. Then the 19th question, with reference to the physical geography of the northeast region, PIB में नॉर्थ ईस्ट को लेके बात थी, से न्यूज लिया गया है. Geography of the northeast region of India, consider the following statement. और आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक क्वेश्चन तो नॉर्थ ईस्ट रीजन पे रहेगा, ऑलमोस्ट हर साल आ रहा है 4-5 साल से. The Barak River originates in Nagaland and flows westward into Assam before entering Bangladesh. The Patkai Bum, Naga Hills, Lusai Hills together form a part of the Purvanchal mountain system. Then third option is Loktak Lake is a tectonic lake located in Barak Basin. Okay. So take 5 seconds, pause the video and mark your answer. So the right answer for this is कि third option जो है वो incorrect है. ये आपका बैराक बेसिन में नहीं है. ठीक है. This is not in Barak Basin. This is located in Central Valley. Central Valley में ये located है. Okay. And other two options are right. ठीक है कि originate होता है नागालैंड से और वेस्टवर्ड जाता है असम में before entering बांग्लादेश. और पटकाइबम, नागा हिल्स और लुसाई हिल्स, ये तीनों ही जो है पूर्वांचल हिल का पार्ट है. ओके, सो होपफुली यू हैव गॉट इट राइट. Now, coming to question number 20, consider the following statements regarding India's disaster response system. First, the Finance Commission allocates SDRF funds to state primarily on the basis of scientific hazard maps and exposure indices. Second, the classification of a disaster as a severe disaster is based on clearly defined criteria laid down in the Disaster Management Act of 2005. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर. ठीक है, यहाँ पे आप फोकस करोगे फर्स्ट ऑप्शन पे कि फाइनेंस कमीशन अलोकेट करता है. आपको पता होगा कि लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, लेकिन इससे पहले जितने भी फाइनेंस कमीशन थे उनका क्राइटेरिया क्या होता था? पॉपुलेशन, एरिया, राइट, पोवर्टी, कैपेसिटी. तो ये हैजार्ड मैप्स क्लाइमेट रिस्क मॉडल पे बेस्ड नहीं होता है. ठीक है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. सेकेंड क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ए डिजास्टर एज अ सेवियर डिजास्टर इज बेस्ड ऑन क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया इन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. अब आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हो आपको पता होगा कि हर कुछ स्टेट्स हैं वो जाते हैं जिन पे डिजास्टर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, मोशन पास होता है उनके तरफ से कि सेवियर डिजास्टर को घोषित किया जाए, अनाउंस किया जाए बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. इसका मतलब क्या है कि दैट इज सब्जेक्टिव डिसीजन टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005. तो दोनों ही ऑप्शन गलत हैं और आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज डी. Now move to the next question, 21st. With reference to Madhvacharya Dvait Vedant, Dvait मतलब dualism, consider the following statement. According to Madhvacharya, liberation मतलब मोक्ष मिलना जो होता है is attainable primarily through ज्ञान rather than भक्ति. कह रहा है कि ज्ञान चाहिए rather than भक्ति. Then second option is Madhvacharya system accepts only two प्रमाण्स. ठीक है, सिर्फ दो चीजों को मानते हैं ये, perception and inference. And the third option is in Dvait the distinction between God, individual souls and matter is eternal and real. कह रहा है कि गॉड, इंडिविजुअल सोल्स और मैटर में जो डिफरेंस है या डिस्टिंक्शन है, क्योंकि द्वैत का मतलब ये तो ड्यूअलिज्म, वो जो है काफी मतलब रियल सेंस में है. ठीक है, सो टेक 5 seconds एंड मार्क योर राइट आंसर. सो इन दिस केस टू ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आपका जो पहला ऑप्शन है दिस इज इनकरेक्ट एंड द सेकंड ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट. द थर्ड वन इज करेक्ट. सो इसमें ये कहते हैं कि जो डिस्टिंक्शन है पंचभेद वाली चीज की, 5 भेद हैं, 5 डिफरेंसेस हैं इनके बीच में, गॉड एंड इंडिविजुअल सोल्स में. ठीक है, और बाकी चीजें जो सेकंड ऑप्शन है आपका उसमें प्रत्यक्ष यानी परसेप्शन, अनुमान, इन्फेरेंस और शब्द मतलब लिखी हुई चीजें जो होती हैं, स्क्रिप्चुअल टेस्टिमनी, उन सभी को मानते हैं. ठीक है, लेकिन पहला स्टेटमेंट आल्सो इज इनकरेक्ट. उसमें कहते हैं कि जो विष्णु का ग्रेस है मतलब गॉड वाली चीज जो है, भक्ति जो चीज है, दैट इज द प्राइमरी मीन्स फॉर लिबरेशन. ठीक है, सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलेगा, सिर्फ ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपको डिवोशन चाहिए. ओके, सो दिस वन इज इनकरेक्ट. सो ओनली वन इंपॉर्टेंट है आपके लिए. Coming to question number 22, with reference to the recent record highs in Sensex and Nifty, consider the following statements. First, both Sensex and Nifty are free float market capitalization weighted indices. Second, a narrow rally led by a few large cap stocks can be disproportionately push the indices upward even if most stocks decline. Third, Sensex contains 50 stocks while Nifty contains 30 stocks. पॉज करेंगे, मार्क करेंगे आप लोग आंसर. ठीक है,
अभी आप लोग ये देखो, लार्ज कैप स्टॉक्स का मतलब होता है ब्लू चिप कंपनीज, लार्ज कैप रिलायंस, एयरटेल, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनीज जो होती है वो होती है, ठीक है। तो अब इस आंसर में आप फोकस करोगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन भी सही है, बट थर्ड ऑप्शन ये इंटरचेंज कर दिया है। सेंसेक्स में 30 लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं और निफ्टी में 50 लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं। और बिकॉज ऑफ द मार्केट सेंसेक्स निफ्टी आईपीओज ऑन गोइंग, तो कैपिटल मार्केट सेक्टर जो है इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। And this is one of the easy questions. Which of the following is the flagship index of Bombay Stock Exchange? कि BSE का जो है फ्लैगशिप जो इंडेक्स है वो कौन सा है? Take 5 second mark. I guess most of you will get it right. Hopefully most of you are getting it right. So the right answer for this is सेंसेक्स. आपने बार बार सुना होगा BSE सेंसेक्स गिरा है, BSE सेंसेक्स बढ़ा है. तो this you should be aware about it. Okay. Coming to question number 24, with reference to Russia's S-500 Prometry air defense system, consider the following statements. First, it is capable of intercepting targets at altitudes extending into near space, including low Earth orbit satellites. Second, it uses hypersonic interceptor missiles designed for hit to kill precision against ballistic and hypersonic threats. Third, its maximum intercept range is lower than that of the S-400 system currently operated by India. ठीक है, पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग। तो जो इसका करेक्ट आंसर है, राइट, उसके पहले ये फोकस करो कि S-400 में अगर जो S-500 S-400 का ही अपग्रेडेड वर्जन होगा, राइट, इतना तो कॉमन सेंस कहता है कि S-500 S-400 का अपग्रेडेड वर्जन होगा। तो अगर अपग्रेडेड वर्जन होगा तो क्यों उसका जो रेंज है वो नीचे होगा, राइट। S-400 का रेंज आपका अराउंड 380 किलोमीटर है, तो S-500 का उससे ज्यादा है, दैट इज अराउंड 600 किलोमीटर। तो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट and 1 and 2 are correct. So the correct answer will be B only 2. Now moving to the next question, 25th. With reference to India's Operation Sagar Bandhu, consider the following statements. It is a humanitarian assistance and disaster relief mission launched to support Sri Lanka after cyclone Ditwa. कि उस कंट्री की हम हेल्प करना चाह रहे हैं परेशानी में. And the second option is it is conducted under India's neighborhood first and vision महासागर फ्रेमवर्क, कि हमारी जो पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट की उसके अंदर किया जा रहा है ये. एंड द थर्ड ऑप्शन इज ओनली नेवल एसेट्स वर डिप्लॉयड एज पार्ट ऑफ द मिशन. ठीक है, सो टेक 5 सेकंड एंड मार्क द राइट आंसर. सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ओनली 2. ओके, अब ओनली 2 कौन कौन से करेक्ट हैं इसमें? तो थर्ड वन इज इनकरेक्ट. आप इससे आप समझ सकते हो कि अगर हम हेल्प करना चाह रहे हैं तो सिर्फ नेवी की यूटिलाइज होगी. वहां पे चांसेस हैं कि एयरफोर्स वगैरह, अब जैसे पता है आपको बीच में सी है तो एयरफोर्स वगैरह भी यूटिलाइज हो सकता है, और यहाँ पे आप देख सकते होंगे. ठीक है, सो आपने गेस भी कर लिया होगा उसे देख के. सो द फर्स्ट 2 आर करेक्ट and the third one is incorrect. Coming to question number 26, with reference to India's revised earthquake design code 2025, consider the following statements. First, the new zonation map places the entire Himalayan arc under a newly created highest risk zone 6 for the first time. Second, the revised map is based primarily on historical epicenter distribution and past earthquake records. Third, cities located on the boundary of two seismic zones will now automatically be categorized under the lower risk zone to avoid over designing. तो पॉज करेंगे एंड मार्क करेंगे आप लोग आंसर, ठीक है। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीम में आ भी सकता है। सेकंड इज इनकरेक्ट, राइट। ये सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल एपिसेंटर डिस्ट्रीब्यूशन और पास्ट अर्थक्वेक रिकॉर्ड को देखकर नहीं बनाया गया है, रिवाइज जो मैप है वो प्रेजेंट कंडीशन पे बनाया गया है। थर्ड जो है वो भी गलत है, ये ऑटोमेटिकली नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज वाली चीज होती है ये, ठीक है। तो जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए ओनली 1. And the last question for the day, with reference to the first blind women's T20 World Cup, यूपीएससी स्पोर्ट्स पे क्वेश्चन पूछता रहा है तो इंपॉर्टेंट है. The tournament was jointly hosted by India and Sri Lanka with the final played in Colombo. All teams were required to field players from B1, B2, B3 visual impairment categories. ठीक है, कि जो विजुअली इम्पेयर्ड कैटेगरी है उनसे आपको प्लेयर खिलाने थे. एंड द थर्ड ऑप्शन इज द चैंपियनशिप वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय
the International Cricket Council as part of its Disability Cricket Expansion Program. So pause the video, mark your answer in OMR sheet. So the right answer for this is only 2. थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट कि जो विमेन जो ब्लाइंड वर्ल्ड कप है ये अभी भी आईसीसी नहीं कराता है, आईसीसी के स्कोप से बाहर है, आईसीसी नॉट कंडक्टिंग इट. सो थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट. फर्स्ट एंड 2 वाज करेक्ट. ठीक है कि B1 B2 B3 कैटेगरी से प्लेयर रहते हैं और इंडिया और श्रीलंका ने होस्ट किया. फाइनल जो है कोलंबो में हुआ. ओके और होपफुली यू आर अवेयर अबाउट इट कि इंडियन टीम won this World Cup. It was a proud moment for us. Okay, so thank you.